Good evening, dear students. Yesterday I taught you some property of proportion. So today is your numerical turn. In exercise 6b, the first question you have given x upon y equals to p upon q. Then you have to prove that कि 5x plus 7y upon 5x minus 7y equals to 5p plus 7q upon 5p minus 7p. Okay. Now in proof question, this part you have given and you will always use the given portion which you have given. आप हमेशा उसे use करते हैं. Okay. And in proving questions, you have to prove left hand side equals to right hand side. आपको ये proof करना है इसके बराबर. Okay. Then in that question you will take one side and you will solve this one side. Okay. Then you will do the same as you will take the second side then solve, or it must be equals to each of other कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए बाय यूजिंग दिस कि x अपॉन y इक्वल्स टू p अपॉन q. क्लियर. नाउ फर्स्ट आई एम राइटिंग कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 5x plus 7y upon 5x minus 7y. And you can see in this question you have not mentioned x upon y. ओके. इट मीन्स आपको क्रिएट करनी है ये सिचुएशन कि आप कैसे क्वेश्चन में x अपॉन वाई लेकर आओ. नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके y है. इट मीन्स इफ यू विल डू डिवाइड बाय y इन ईच नंबर्स देन यू विल गेट x अपॉन वाई मिलेगा. अगर मैं यहाँ y डिवाइड करूँगी देन यू विल गेट 5 इंटू एक्स अपॉन वाई. यहाँ डिवाइड करूँगी देन 7 इंटू वाई अपॉन वाई. देन y इज कैंसिलेशन बाय y. Then the same as कि 5x upon y minus 7y upon y. Then you will get x upon y. Okay. Then do by dividing y. ठीक है. Then you will get कि 5x plus 7y y divided by 5x upon y minus 7y upon y. Then you will get y is cancellation by y or y is cancellation by y. Then you will get 5 into x upon y plus 7 upon 5 into x upon y minus 7. Got? You will get x upon y. मिल गया x upon y. Then what you have given कि if x upon y equals to p upon q, it means in place of xy you can write p upon q. Then by putting the value, then from equation first, suppose this is the equation first. Okay. Then you can write in place of x upon y equals to p upon q. Okay, plus 7 upon 5 into p upon q minus 7. Okay, then you will do the same कि you will take the LCM. ठीक है. And by taking LCM you will get 5p plus 7q upon q, then divided by 5p minus 7q upon q, and q is cancellation by q, and you will get 5p plus 7q upon 5p minus 7q, and this is your right hand side. You can see you have to prove that कि this is equal to 5p plus 7q upon 5p minus 7q. It means आपको right hand side solve करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको by solving left hand side if you are getting directly right hand side then no need to solve right hand side. if अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है देन यू हैव टू नीड टू सॉल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो. क्लियर. ओके. नाउ see the next question. The next question you can do yourself. Now I am doing the question number 6th. Question number 6th. See in question number 6. Question number 6 you have given कि x equals to 10pq upon p plus q. Then you have to find the value of
find the value of x plus 5p upon x minus 5p plus x plus 5q upon x minus 5q. ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x की वैल्यू. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे अगर आप इस x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे देन यू कैन सॉल्व. ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व, बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बिकॉज ऑफ यू हैव अ डिनोमिनेटर टर्म एंड बाय टेकिंग एलसीएम यू विल डू. ओके, देन जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा. देन यू हैव टू यूज़ योर प्रॉपर्टी विच यू हैव रीड yesterday. ओके, नाउ यू कैन सी द हिंट फ्रॉम द प्रूफिंग पार्ट. जो आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे आप हिंट ले सकते हैं. नाउ सी हियर इज ए x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p है आपके पास, और आपके पास ये सिचुएशन दिख रही होगी. कल आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी पढ़ी कि इफ़ यू हैव अ 2 रेशियो a अपॉन b, तो इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे बनेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस b बनेगा. येस और नो. इट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p, एक बारी ऐड हो रहा है और एक बारी सब्सट्रैक्ट हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे आपके पास सिचुएशन कैसी होगी, x अपॉन 5p, मतलब x अपॉन 5p होगा. देन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यू विल गेट x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p. क्लियर, आया समझ में. द सेम एज कि यहाँ पे आपके पास कौन सी सिचुएशन होगी, x अपॉन 5q वाली. क्लियर. इट मीन्स फर्स्ट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रॉम दिस जो आपके पास गिवन पार्ट है. और हमेशा इन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैथ्स प्रॉब्लम्स, जो भी आपके पास गिवन पार्ट होता है, जो भी आपको फाइंड करना होता है, दोनों में आपका रिलेशन होता है. ठीक है, एंड यू हैव टू मिक्स दीज टू कि गिवन पार्ट और प्रूफिंग पार्ट को आपको मिक्स करना पड़ता है. देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अब देखो आपको क्या चाहिए, 5p चाहिए 5p. इट मीन्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 10pq. हाउ, इट मीन्स यू कैन राइट कि x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q अपॉन p प्लस q लिख सकते हो. एंड इन फर्स्ट पार्ट व्हाट यू नीड, 5p ना, x अपॉन 5p. इट मीन्स आपको इस 5p को क्या रखना है, अलग रखना है. क्लियर. इट मीन्स यू कैन राइट कि x इक्वल्स टू 5p इंटू 2q अपॉन p प्लस q. अब जब आप इसको इधर लेके जाओगे डिनोमिनेटर में, अल्टरनेट मेथड, यू नो ना, बाई अल्टरनेट मेथड यू कैन राइट कि x अपॉन 5p इक्वल्स टू 2q अपॉन pq. कोई चेंज हुआ आपका क्वेश्चन, देयर विल बी नो चेंज. बस आपने अल्टरनेट प्रॉपर्टी से आपने इसको ऐसा लिख लिया. क्लियर. अब देखो x अपॉन 5p मिल गया आपको. नाउ यू विल यूजिंग प्रॉपर्टी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यू विल यूज. ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी डू कि 5 प्लस x प्लस 5p upon x minus 5p equals to the same property you will use 2q, sorry here is plus, then plus p plus q upon 2q minus, take care of this minus sign. If you are putting minus sign then the sign will be change of each number. ठीक है, then x plus 5p upon x minus 5p equals to 3q plus p upon q minus p. क्लियर. इट मीन्स इसकी वैल्यू मिल गई आपको ये. ओके, नाउ you will take this relation also, again you will take this relation. ठीक है, अब आपको चाहिए 5 अपॉन 5 x अपॉन 5q चाहिए. इट मीन्स अब आप किस दोनों को अलग करोगे, 5q को अलग करोगे. इट मीन्स इस रिलेशन को आप ऐसे ही लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 5q इंटू 2p अपॉन p प्लस q.
लिख सकते हो. एंड द सेम एज कि x अपॉन 5q इक्वल्स टू 2p अपॉन p प्लस q. Yes, and the same as कि by using compoundendo and dividendo. Compoundendo and dividendo प्रॉपर्टी यूज करके x प्लस 5q अपॉन x माइनस 5q इक्वल्स टू 2p प्लस p प्लस q एंड द सेम एज कि 2p माइनस p और माइनस q साइन विल बी चेंज. ओके, देन x माइनस 5q अपॉन x माइनस 5q इक्वल्स टू 3p प्लस q अपॉन p माइनस q. क्लियर? नाउ आपको दोनों की वैल्यू मिल गई. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q अपॉन x माइनस 5q. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी. अब इसकी वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू की वैल्यू पुट करो. देन 3q प्लस p अपॉन q माइनस p देन प्लस 3p प्लस q अपॉन p माइनस q. क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर इज q माइनस p एंड हियर इज p माइनस q. दोनों नंबर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक कॉमा एज माइनस साइन, और जब आप कॉमा लोगे माइनस साइन देन do 3q plus p upon q minus p minus 3p plus q upon p q minus p होगा. then q minus p denominator are same, then directly LCM will numerator will be add कि 3q plus p, here is a minus sign and outside of a bracket if minus sign then sign will be changed, that minus 3p minus q upon q minus p. Now you can do 3q minus q 2q p minus 3p minus 2p upon q minus p. 2 is common, then q minus p upon q minus p, and q minus p is cancellation by q minus p, then you will get 2. Clear? So this is the method to solve the question. So all of you do complete this exercise, and if you have any doubt in this exercise then ask to me. Okay, thank you.